Hello children, welcome back to online class. Children, I think I have given you this exercise in your we have already discussed about this in the online class, and in offline I have given you up to this question number E. So today we are going to do this grammar fun. Here we will learn about where we can use is and where we can use are and where we can use am. Okay, I know we have already discussed about it. I am just giving it for those who are absent during the online class. Okay, so just try to get it, children. So question number 1 is here. Before that, let me explain you something. We use is when we speak about one person or thing. Children, when we should use is when we should use is whenever we find a noun which is only singular, means single, at the time you can use is. And whenever you can find more than 1, 2 or 3 or 4, when we even use are when we speak about more than one person or one thing, at that time you can use are. Okay, and when we can use am, children, only after the I we can use am. Okay, and we also use are with you, and with you we always allowed to use are only, because you is a plural form. Okay, so first question is here, the giant and the genie. Giant and genie, 2 persons na, that's why we had used are here. Next, Jed is only 1 person, children, so what you can use there is Jed is a soldier in the army. Next, the baby elephant dash hungry. Baby elephant, only singular noun is there, only one elephant is there, then you can use is. The baby elephant is hungry. Next, after I, what you can use? After I you only need to use am, because it is already given there. After I we always use am. I am never late for my dance classes. Okay, after that, last one is there, Geeta. Geeta is name of a girl, so only one girl is there, so what we can use here? We can use is. Geeta is feeding the birds. Okay, now look at here, children. In replacement of is and are, sometimes we need to use was and were. Why? Because when we talk about something that has already happened, बच्चों हम लोग कभी भी जो बीत गया है अगर उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे is और are के जगह पे was और were यूज होगा. ठीक है, was और were, is के जगह पे was, are के जगह पे were. ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. जेड डैश ए पुअर टेलर, या तो हमें वाज यूज करना है या तो वेर. तो बच्चों वाज ऑलरेडी यूज्ड इन वन पर्सन और वन थिंग, सो जेड इज ओनली वन पर्सन. जेड वाज ए पुअर टेलर. आफ्टर दैट द जियांट एंड द जीनी, दीज आर 2. द जियांट एंड जीनी वेर, WERE, वेर फ्रेंड्स. After that, the king was happy. राजा एक ही है, the king was happy. After that, Manu and Reena. Manu and Reena, 2 names are there. Manu and Reena were having ice cream. Next, Granny. Granny is only single Granny is there. Granny was surfing the net. Okay, तो बस यही है बच्चों ग्रामर का. अभी हम लोग नेक्स्ट पोएम जो कि हम लोग लाइव क्लास में पढ़ चुके हैं वो जानेंगे. ठीक है, ये लेसन का एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होता है. अभी हम लोग द मदर बर्ड पोएम और उसका एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है बच्चों, सो लुक एट हियर चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू जस्ट रीड आफ्टर मी. ओके, मैं अभी जो भी पढ़ूंगी मेरे बाद में आप सबको पढ़ना है. टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स, पेज नंबर 42 एंड रीड आफ्टर मी. द मदर बर्ड. बच्चों यहाँ पे पोएम का नाम है द मदर बर्ड. मदर बर्ड मतलब मम्मा बर्ड. चिड़िया जो है उनकी छोटे छोटे बेबी से उनके मम्मा के बारे में ये पोएम है. ओके,
So read after me, children. A bird sits singing in our tree. This is the song she sings to me. Don't you touch my little nest. Leave my babies there at rest. Dear little bird, you need not fear. Your nest to me is very clear. So sing, dear bird, your very best, while all day long your babies rest. Again we will read, children. A bird sits singing in our tree. This is the song she sings to me. Don't you touch my little nest. Leave my babies there at rest. Dear little bird, you need not fear. Your nest to me is very dear. So sing, dear bird, your very best, while all day long your babies rest. Okay, children. So this is the story, is poem which we recite it now. So now I am going to explain this poem. Listen to me. A bird sits singing in our tree. बच्चों, इसका मतलब है ये जो छोटा लड़का है वो बोल रहा है, एक बर्ड है जो कि हमारे पेड़ के ऊपर बैठ के गाना गा रही है. दिस इज द सॉन्ग शी सिंग्स टू मी. कौन सा गाना गा रही है? वो यही सॉन्ग है जो वो गाना गा रही है. डोंट यू टच माई लिटिल नेस्ट. डोंट यू टच. टच का मतलब छूना, नेस्ट का मतलब घोंसला सबको पता है. मेरा जो नेस्ट है उसको बिल्कुल भी छूना मत. लीव माई बेबीज देयर एट रेस्ट. मेरे जो छोटे छोटे चिड़ियों, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं. लीव, LEAVE, लीव मतलब छोड़ना. मेरे जो छोटे छोटे बेबीज हैं उनको रेस्ट लेने देना, ठीक है. डियर लिटिल बर्ड, यू नीड नॉट फियर. उसके बाद ये जो छोटा बच्चा है वो क्या बोलता है? डियर लिटिल बर्ड, मेरी प्यारी बर्ड, तुम बिल्कुल भी डरना मत. फियर मतलब डरना. नीड नॉट फियर मतलब बिल्कुल भी मत डरना. योर नेस्ट टू मी इज़ वेरी डियर. तुम्हारा जो चिड़िया का घोंसला है वो मुझे भी बहुत प्यारा लगता है और मुझे भी बहुत पसंद है. सो सिंग डियर बर्ड योर वेरी बेस्ट. तो तुम्हें जितना अच्छा गाना आता है उतना अच्छे से तुम गाना गा सकते हो. वाइल ऑल डे लॉन्ग योर बेबीज एट रेस्ट. योर बेबीज रेस्ट. जब पूरा दिन तुम्हारे जो छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चे हैं वो जो रेस्ट लेते हैं, तब तुम्हें जितना भी गाना गाना है तुम गा सकते हो. दिस लिटिल बॉय सेड लाइक दैट. सो दिस इज द poem, children. Hope all of you understood the poem. Next we will do the exercise of this poem. Circle the correct words to complete the sentences. बच्चे यहाँ पे जो correct words है वो हमें circle करना है sentence complete करने के लिए. A monkey. A monkey और bird sits in the tree. क्या होगा? कौन बैठा था पेड़ के ऊपर? Bird. Circle करो बच्चों. The bird sings or reads a song. The bird sings a song. Next, the bird does not want anyone to touch the tree or nest. The bird does not want anyone to touch the nest. Next, the squirrels or babies in the nest rest all day long. The babies in the nest rest all day long. ठीक है बच्चों. अभी हम लोग नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे. Who said these words? किसने किससे कहा है? Don't you touch my little nest. मेरा जो लिटिल नेस्ट है उसे बिल्कुल भी टच मत करना. कौन बोला? बर्ड बोली. नेक्स्ट, लीव माई बेबीज देयर एट रेस्ट. मेरी जो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे हैं उनको वहाँ पे रेस्ट लेने देना. Who said this? These words were said by the bird only, mother bird. नेक्स्ट, सो सिंग डियर बर्ड योर वेरी बेस्ट. तो तुम्हें जितना गाना है गाना है गाओ. ये बात कौन बोला? चाइल्ड. CHILD, चाइल्ड. अभी देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड हर्ड. जब एक एलिफेंट होता है तो हम लोग बोलते हैं दैट इज़ एन एलिफेंट और दिस इज एन एलिफेंट.
बट जब बहुत सारे एलिफेंट्स एक पास होते हैं हम लोग क्या बोलेंगे? हर्ड, HERD, हर्ड। ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ए हर्ड ऑफ एलिफेंट। वैसे ही यहाँ पे कुछ चीज़ों का नाम, कुछ एनिमल्स का नाम दिया है, मतलब ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज वर्ड ए फ्लोक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ कीज, मतलब बहुत सारे कीज अगर एक पास होने से BUNCH, बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट, बहुत सारे सिप्स, जितने भी सिप्स एक पास होने से, जो पानी में जाता है वो सिप्स एक पास होने से फ्लीट, FLEET, फ्लीट ऑफ सिप्स। नेक्स्ट, ए हर्ड ऑफ काउस, जैसे एलिफेंट की ग्रुप को हम लोग हर्ड ऑफ एलिफेंट्स बोलते हैं, वैसे ही काउस, गाय जो होता है उनके ग्रुप को हम लोग ए हर्ड ऑफ काउस ही बोलते हैं। नेक्स्ट, ए बॉक्स ऑफ क्रेयंस, बॉक्स ऑफ क्रेयंस। नेक्स्ट, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, जितने भी स्टिक से, एक स्टिक होने से हम लोग दैट इज ए स्टिक, इट इज़ ए स्टिक बोलते हैं, लेकिन एक पास बहुत सारे स्टिक्स होने से ए बंडल ऑफ स्टिक्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अभी देखो ग्रामर पार्ट, ग्रामर फन। वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ ए वावल साउंड। बच्चों, ए और एन का यूज़ आपको स्टैंडर्ड 1 में ही समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग नॉर्मली कहाँ पे ए यूज़ करते हैं बच्चों और कहाँ पे एन यूज़ करते हैं? एन कहाँ पे यूज़ करते हैं? जो भी वर्ड्स वावल साउंड से आता है, जैसे कि AEIOU, ऐसे प्रोनाउंसिएशन से अगर आता है, जैसे कि एप्पल, एलिफेंट, अम्ब्रेला, एरोप्लेन, ये सब आइसक्रीम ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे इससे पहले एन यूज़ होगा, वावल साउंड से पहले एन यूज होगा। और कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कि जो भी वर्ड जिसमें वावल साउंड नहीं आएगा, जैसे कि डॉग, कैट, काइट, ओके, वैसे वर्ड्स को क, कै, ड, ऐसे वर्ड्स को से पहले हम लोग ए यूज़ करते हैं, बस उतना ही बच्चों। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स, कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, वहाँ वो पिक्चर्स का नाम हमें लिख के उससे पहले ए यूज़ होगा कि एन यूज़ होगा हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ए र वर्ड, र से स्टार्ट हो रहा है, जो कि वावल साउंड नहीं है, तो यहाँ पे ए यूज़ हुआ। नेक्स्ट, एरोप्लेन, ए से स्टार्ट हो रहा है वावल साउंड से, इसीलिए एन, एरोप्लेन, AEROPLANE। नेक्स्ट, ए डॉल, ड इज नॉट ए वावल साउंड। नेक्स्ट, बॉल, बॉल इज ऑल्सो नॉट ए वावल साउंड, सो इससे पहले ए यूज हुआ। नेक्स्ट जानेंगे, ए टेडी, ए ट्रेन, टेडी, टेडी ट से और ट्रेन ट से, सो दोनों वावल साउंड नहीं है, तो इससे पहले ए यूज हुआ। नेक्स्ट, एन अम्ब्रेला, ए काइट, अ इज ए वावल साउंड ना, सो इससे पहले अन यूज हुआ। नेक्स्ट, काइट, क इज ए नॉट ए वावल साउंड, तो उससे पहले ए। अभी एलिफेंट, एलिफेंट का स्पेलिंग यहाँ पे ठीक से नहीं दिख रहा है बच्चों, मैं लिख देती हूँ। और एलिफेंट से पहले क्या यूज होता है? एन एलिफेंट, ELEPHANT, एन एलिफेंट, ओके। अभी देखो बच्चों, राइट ए और एन टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इससे यहाँ पे ए यूज होगा कि एन यूज होगा हमें लिखना है, ठीक है। तो देखो, देयर वाज ए जंगल ऑन वन साइड ऑफ द सिटी। ए यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है, नाउन दिया गया है, वो वावल साउंड नहीं है। देयर वाज ए जंगल। नेक्स्ट, आउल lived in the neem tree. A is a vowel sound, that's why we have used an owl, ठीक है। Next, did you see an elephant? Elephant is a vowel sound, so did you see an elephant in the jungle? Next, an army of soldiers guarded the city. Army is a vowel sound. Next, an insects, E इज ए वावल साउंड, इसीलिए यहाँ पे एन यूज हुआ है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, ममा बर्ड एंड पापा बर्ड बिल्ड ए नेस्ट इन द ट्री। आंसर दिस क्वेश्चंस। यहाँ पे ममा बर्ड और पापा बर्ड ने
एक चिड़िया का घोंसला बनाया है। अभी उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वेयर इज द नेस्ट, वो नेस्ट कहाँ पे है? तो आंसर आप लिखोगे द नेस्ट इज ऑन द ट्री। नेक्स्ट, हाउ मेनी चिक्स आर देयर इन द नेस्ट, वो नेस्ट में कितने चिक्स छोटे छोटे बेबी बर्ड्स हैं? देयर आर 4 चिक्स इन द नेस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज पापा बर्ड डूइंग, पापा बर्ड इज फीडिंग द बेबीज, पापा बर्ड जितने भी बेबीज है उसको खाना खिला रहा है। व्हाट आर द बेबीज डूइंग, वो बेबीज क्या कर रहे हैं? द बेबीज आर ईटिंग देयर फूड, वो जो छोटे बेबीज है वो खाना खा रहे हैं। वेयर डू यू थिंक मामा बर्ड हैज़ गॉन, मामा बर्ड कहाँ गई है, आप क्या सोचते हो? मामा बर्ड हैज़ गॉन टू ब्रिंग फूड, मामा बर्ड खाना लाने गई है। सो चिल्ड्रन, दैट्स द poem and the question and answers of that poem, means exercise of that poem. Hope all of you understood it properly. So in the next class I will come with a new chapter. Children, I am teaching it little bit fast because I have already discussed in the online class also, that's why. Okay, I've already given you this for so that you can note the question and answers in your English to textbook, means this exercise, that's why. Okay, have a good day all of you. Your homework is you have to write this exercise in your English to notebook. Okay.